ਹੈਲੋ ਸਟੂडेंट्स, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.3 ਦਾ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਥਿਊਰਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਫਿਗਰ QR upon QS is equal to QT upon PR। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਐਂਗਲ 1 is equal to ਐਂਗਲ 2, ਐਂਗਲ 1 ਤੇ ਐਂਗਲ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਦੈਟ PQS ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ PQS ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ TQR ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਗਿਵਨ ਦੈਟ QR upon QS is equal to QT upon PR। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੈ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਐਂਗਲ 1 is equal to ਐਂਗਲ 2। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, PS। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, PS। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, 2 ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, 2 ਐਂਗਲ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, PQ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, PR, ਔਰ 2 ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, PQ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਗੀ PQ, ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਗੀ PR। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਗਲਸ ਦੇ, ਅਗਰ ਦੋ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਈਡਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ PR ਤੇ PQ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ, PR ਤੇ PQ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ PR ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ PQ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਫਰੋਮ 1 QR upon QS is equal to QT upon PQ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ 2। ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਅਰਫੋਰ in triangle TQR and triangle PQS ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, TQR ਤੇ PQS ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ QR upon QS। ਠੀਕ ਹੈ, QR upon QS, ਇਧਰੋਂ QT upon PQ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ Q ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਦਾ, TQR ਦਾ ਐਂਗਲ Q ਔਰ PQS ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਂਗਲ Q। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, QR upon QS is equal to QT upon PQ। ਠੀਕ ਹੈ, QT upon PQ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਅਬਵ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਅਬਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਇੱਕ Q। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ Q ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ QR। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ QR, ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ QS, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ QT ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ PQ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਕਾਮਨ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ 2 ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਹ ਇਕੁਅਲ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ PQS ਕਿਹਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋਗੀ, ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ TQR ਤੇ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ S and T are points on sides PR and QR। PR and ਇਹ QR of triangle PQR। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ PQR ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PQR। ਠੀਕ ਹੈ, S ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, PR ਤੇ। PR ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ S ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ QR ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ,
टी पॉइंट तेनों आपां की कर देने मैच कर देने। होर गिवन की है तुहानूं जिहड़ा पी एंगल है आह वाला एंगल किहदे इक्वल आ आर टी एस दे यानी कि इहदे इक्वल है। ठीक है तो आपां नूं गिवन की है गिवन एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। ठीक है ऑफ ट्राईएंगल केड़ी पी क्यू आर और होर आपां नूं की दित्ता होया एंगल पी किहदे इक्वल है एंगल आर टी एस दे। ये तुहानूं गिवन है। हुण तुसीं जिहड़ियां ट्राईएंगल प्रूव करनियां उन्हां नूं लिखदे आ इन ट्राईएंगल आर पी क्यू एंड ट्राईएंगल आर टी एस। ये तुसीं प्रूव करनियां ने एंगल पी ते एंगल ए दोनों इक्वल ने। ठीक है आपां लिखदे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये तुहानूं की है गिवन है। हुण देखो एंगल आर दोनों च आ रहा है आर पी क्यू ये भी आ रहा है और आर एस टी ये भी आ रहा है। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू ये तुहाडे कोले की है कॉमन है। ठीक है अगर दो एंगल तुहाडे इक्वल हो गए तो आप बाय डबल ए लिख सकते हैं बाय थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाऊगा बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राईएंगल केड़ी आर पी क्यू सिमिलर आ गई ट्राईएंगल आर टी एस। क्लीयर नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है 6 है तुहानूं दिता होया इन फिगर ये फिगर बनाने वाली रह गई आप फिगर बना लीए पहला ये फिगर ऐदा बनी हुई है बुक के उपर बनी हुई है। ठीक है 6 दी ये वाली ट्राईएंगल है इत्थे पॉइंट है ने ए बी सी ये हैगा डी ए पॉइंट हैगा ई इनू इत्थे मैच किया होया और इनू इत्थे मैच किया होया। ठीक है ये ऐदा दिती हुई है इन फिगर इफ ट्राईएंगल ए बी ई ए वाली ट्राईएंगल कॉन्गूरेंट है ट्राईएंगल ए सी डी दे ए सी डी आ वाली ट्राईएंगल। ठीक है कॉन्गूरेंट है शो दैट ए डी ई ए वाली ट्राईएंगल ए बी सी दे की होगी सिमिलर होगी। तो आपां की है सब तो पहला की है गिवन दैट जो भी गिवन है उन्होंने लिख लो ट्राईएंगल ए बी ई कॉन्गूरेंट है ट्राईएंगल ए सी डी दे। अगर ये कॉन्गूरेंट ने तो तुसी ए ई इज इक्वल टू ए डी लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि ਇਹਦਾ फर्स्ट ते लास्ट ਇਹਦਾ भी फर्स्ट ते लास्ट बाय सीपीसीटी। ठीक है उस तो बाद की है देन ए बी ਇਹਦੀ फर्स्ट साइड ए बी ये किहदे इक्वल हो जूगी ए सी दे ये भी बाय सीपीसीटी दो साइड्स इक्वल हो गई। देन थर्ड आपां की करते हुन्ने आ इन्हां दी रेशो भी सेम होगी। ठीक है इन्हां दी रेशो भी सेम हो सकती है। ठीक है तो आपां इन्हां दी रेशो लिखांगे हुण तो अगर आप ये लिख लीए ए बी अपॉन ए डी लिख लीए। ठीक है क्योंकि इक्को साइड वाली लिख ली मैं ए बी कि इक्वल है ए सी दे इक्वल है और ए डी कि इक्वल है ए ई दे इक्वल है। तो इन्हों आप इदा लिख सकते हैं हुण ए सी आप नीचे लिया सकते हैं इनू आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। इनू आप इधर लिया इधर आके मल्टीप्लाई होगी वो इधर आके डिवाइड होगी। ठीक है तो इदा आप एक्सचेंज कर सकते हैं इनू आप 1 नाल डिनोट कर देंगे। हुण आप लैंदे जिहड़ियां ट्राईएंगल आप सिमिलर प्रूव करनियां सी हुण लिखांगे आप इन ट्राईएंगल ए डी ई एंड ट्राईएंगल ए बी सी। इन्हां दोनों ट्राईएंगल्स दे विच चैक करो ए डी ई एंड ए बी सी तुहानूं रेशो गिवन आ ए बी अपॉन ए सी ए बी इहदी साइड इहदी हैगी है तुहाडे कोले ए बी अपॉन ए सी ये किहदे इक्वल गिवन है ए डी अपॉन ए ई दे फ्रॉम 1। ठीक है ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई इन्हां दी तुहानूं इक्वल दित्ती हुई है रेशो। ठीक है तो इनू आप लिख सकते हैं सेम चीज ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई आपां कोई फर्क नहीं पैंदा आप इक्वल लिख सकते हैं। हुण देखो एक तुहानूं गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए तुहाडा एंगल की है कॉमन है। ठीक है ये एंगल कॉमन है तो देखो एदी ए बी साइड और एदी ए सी साइड दोनों की रेशो ली हुई है ना आप ए बी ते ए सी
ठीक है। इधरों एदी एडी साइड ते एदी ई साइड दोनों की रेशो आप इन्ना ही ली हुई है, एक एंगल ते दोनों की रेशो इक्वल है। देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ADE सिमिलर होगी ट्राइंगल ABC दे। देखो आई होगा AD अपॉन AB या फिर AB अपॉन AD और AE ते AC अपॉन AE, इन्हां दी रेशो इक्वल होगी, एंगल A इक्वल है, तो दोनों की हो गया सिमिलर हो गया। क्लीयर। नाउ मूव नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। इन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE दोनों की ने इंटरसेक्ट करते हैं अपने को पॉइंट P ते, ठीक है। एट पॉइंट P शो दैट ट्राइंगल AEP ए वाली आ भी 90 डिग्री का एंगल है एंड CDP ए वाला ये दोनों सिमिलर होणगियां। ABD ते CBE, AEP ते ADB और लास्ट है PDC ते BEC। पहला आप करते हैं फर्स्ट इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP ये देखो ADP सॉरी AEP आ वाला इधरों आ गई ट्राइंगल ए वाली, ये D ते E एंगल इक्वल ने ना, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP लिख लो CDP। ये की ने अपने को ईच 90 डिग्री, दोनों की ने 90 डिग्री ने, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट की है एंगल APE आ वाला ते आ वाला वर्टिकली ओपोजिट एंगल हो गए। APE इज इक्वल टू एंगल CPD ये तुहाडे कोले की हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो अगर दो एंगल इक्वल थर्ड तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल केड़ी AEP तुहाडे कोले सिमिलर होगी ट्राइंगल CDP दी। नाउ नैक्सट है सेकेंड पार्ट ABD ए वाली ट्राइंगल ABD, ठीक है। और इधरों CBE ए वाली ट्राइंगल। हुण देखो अगर इधर एंगल 90 है तो भी 90 होगा क्योंकि लीनियर है, इधरला एंगल 90 है तो यह भी 90 होगा, ठीक है। हुण आपां देखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE ये देखो ABD, ठीक है। ABD ते CBE एक तो इन्हां दे विच B ते B ये तुहाडे कोले की हो गया कॉमन हो गया। सैकेंड की है एक तो यह एंगल कॉमन हो गया। उस तो बाद चैक करो यदा D एंगल, इनू आप की लिखांगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल यदा की है E एंगल। E एंगल नू किवें लिखोगे तुसी BAEB दोनों इक्वल ने ईच 90 डिग्री। अगर दो एंगल इक्वल आ गए तो आप की लिखांगे बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD सिमिलर होगी ट्राइंगल CBE, ठीक है। नैक्सट थर्ड पार्ट दे विच तुसीं किहड़ी ट्राइंगल लैनी है ट्राइंगल AEP सॉरी इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB ये दोनों लैनियां ने। हुण देखो किहड़ी लैनियां ने AEP ए वाली ट्राइंगल और दूसरी हैगी ADB ए वाली ट्राइंगल। आ वाली ट्राइंगल लैनी एक तुसीं लैनी है ए वाली ट्राइंगल, ठीक है। हुण देखो आ एंगल 90 है, आ एंगल 90 है, दो एंगल 90 हो गए, ए कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये वालियां भी आपां इदां ही सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो एंगल किहड़ा इत्थे हुण देखो तुसीं एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DAB। जब तुसीं डायरैक्ट एंगल A इज इक्वल टू एंगल A भी लिख सकते सी, बट वो जो आप एंगल A लिखांगे तो उहदे च आ एंगल भी आ सकता है, इस करके आपां नूं इदां ही लिखना पएगा, ठीक है। हुण ये एंगल इक्वल है, ये की है तुहाडे कोले कॉमन है। नैक्सट तुहाडे कोल की है एंगल PAEP इज इक्वल टू एंगल ADB
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਈਚ 90 ਹੈ। ਦੇਖੋ एंगल AEP ਆ ਵਾਲਾ एंगल और इधरों ADB आ वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों की ने 90 हो गए। देयरफॉर बाय डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल किहड़ियां किहड़ियां AEP सिमिलर होगी ट्रायंगल ADB दे। क्लीयर, ठीक है। नाउ लास्ट फोर्थ पार्ट है ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ट्रायंगल PDC ਤੇ BEC इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਹੈ, PDC है, PDC ਇਹ ਵਾਲੀ और दूसरी हैगी है BEC ਇਹ ਵਾਲੀ, ठीक है, BEC ਤੇ PDC। एक तो D एंगल इक्वल है और एक की है तुहाडे कोले C एंगल कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं एंगल DCP, इधरों एंगल की आ जाऊगा ECP, ये तुहाडे कोले की आ गया कॉमन आ गया C दोनों दे विच, ठीक है। और एंगल CDP एंगल BEC ये तुहाडे कोले की आ गया ईच 90 डिग्री आ गया। देयरफॉर बाय डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल PDC सिमिलर होगी ट्रायंगल BEC दे, यही आपां प्रूव करना सी। क्लीयर, ठीक है। तो जिहड़े हैगे ने नैक्सट क्वेश्चन आपां नैक्सट वाली वीडियो दे विच करांगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।